मेरे तरफ देखो। I want your attention. Look at me. All those who are online, stay focused. All those who are offline, look at me. Look. The other day we had a very important note. Stay focused. If y is equal to ax plus b, add subtract is the change of origin. Multiply divide is the change of scale. Any measure of central tendency of y is a into that measure of central tendency of x plus b. So it depends on a and b both. So it is dependent of change of origin and scale. But any measure of dispersion of y, इकडे बघा, इधर देखो, look at me. Any measure of dispersion of y is a into measure of dispersion of x. But measure of dispersion is an amount of variation, quantum of variation. Quantum magnitude cannot be negative, so we put that in the modulus. इसका मतलब अगर negative भी आया तो भी positive लिखने का है. We had few questions based on that, very important. Then we started. Please silence. Otherwise, you will have to observe silence of 1 minute in the memory of foundation. And then we will say, RIP Foundation. Rest in peace, RIP Foundation. We then said, summation x correct is summation x wrong. 4 दिन हो गए लेक्चर को, फिर भी मेरे को याद है प्रिसाइसली व्हाट वी हैड डन, और आपको बिल्कुल याद नहीं है व्हाट वी हैड डन. आई एम स्टडिंग फॉर यू, यू आर नॉट स्टडिंग फॉर योरसेल्फ. दैट्स द डिफरेंस. Commitment to the task that you have undertaken. Somewhere if that lacks, अगर वहाँ उसकी कमी आती है कमिटमेंट की, तो फिर फॉरगेट अबाउट सीए. सिर्फ सीए ही छोड़ो, वड़ा पाव की गाड़ी भी शुरू करनी है तो कमिटमेंट लगता ही है, क्रिएटिविटी लगती ही है, हार्डवर्क लगता ही, ऑनेस्टी लगती ही है, बेसिक क्वालिटीज. और अगर शादी भी करेंगे तो भी ये सब क्वालिटीज लगती है. कमिटमेंट तो होनी चाहिए, ऑनेस्टी तो होनी चाहिए, लेकिन एक और ज़्यादा वहाँ लगता है, वो है एफिशिएंसी, स्टैमिना, वो भी तो लगता है. अभी जरा मेरे तरफ देखो. समेशन एक्स करेक्ट इज समेशन एक्स रॉन्ग माइनस एक्स रॉन्ग प्लस एक्स करेक्ट. Basic principle, one line principle. You don't have to mug up everything. Subtract what is wrong, add what is correct. You get what you want. Summation x square correct is summation x square wrong. अब ये स्क्वायर का सम है, तो माइनस एक्स रॉन्ग का स्क्वायर प्लस एक्स करेक्ट का स्क्वायर. समेशन 1 अपॉन एक्स, हार्मोनिक में इनको लगता है. समेशन 1 अपॉन एक्स करेक्ट is summation 1 upon x wrong minus 1 upon x wrong plus 1 upon x correct. और ज्योमेट्रिक मीन में मल्टीप्लिकेशन लगता है, तो दैट प्रोडक्ट को रॉन्ग वैल्यू से डिवाइड करो और करेक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तो करेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा. नाउ एक गया बाहर, एक आया अंदर, तो नंबर विल रिमेन द सेम. एक गया बाहर, कोई नहीं आया अंदर, तो n विल रिड्यूस. कोई नहीं गया बाहर, फिर भी एक आया अंदर, क्या मजा से. अभी few questions were given to you for the homework, but जहां तक हम आपको पहचानते हैं, आपने होमवर्क नहीं किया है. That is the reason why you are in the revision batch. थोड़ा सा पिंच हम लेते रहेंगे,
बार बार हम आपको थोड़ा सा टोकते रहेंगे। तो फिर यहाँ 12th और 11th क्वेश्चन के 12th और 13 क्वेश्चन के लिए मेरे तरफ देखो। 11th हमने किया है, राइट? 12th और 13 क्वेश्चन के वास्ते अब तुम मेरे तरफ देखो। लुक एट मी, स्टे बैक। Geometric mean of three numbers is what? 50. किया है क्या तुमने? नहीं किया है ना? All those who had done these questions, tried these questions honestly, will raise the hands. जिन्होंने नहीं किया है वो ऊपर मत करो hand. Raise the hand those who had tried this honestly. Coward. किसी ने नहीं किया। एक डन, आया नहीं, ट्राई किया 3, और देखो इन अ क्लास ऑफ अराउंड 4, in a class of around online plus offline there are 1300 students. Say 4 students had done the homework, tried for the homework. I don't mind if you don't get the answer. I mind for not trying at all. आपको अगर करना ही नहीं है, एक बोलूं क्या, not as a teacher but a very close friend of all of you, well wisher of you, एक बोलूं क्या, नहीं करना है ना तो आज छोड़ दो। क्योंकि क्या है, अभी करेंगे, अभी पास भी हो गए, शायद इंटर में वापिस अटकेंगे, क्योंकि इंटर में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वहां एमसीक्यू स्टाइल एग्जाम नहीं है, लेकिन वो इजी है। इजी है इसलिए सो मेनी स्टूडेंट्स आर पासिंग एवरी ईयर। देखो क्या होता है कि those who do will clear, those who don't do will never clear। ये सीए की एग्जाम है, ये 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम नहीं है। 20% इंटरनल मार्क्स होते हैं, फिर वो वैसे भी 6 मार्क्स मिल गए तो 26 के 35 कर देते हैं, पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं होने वाला इधर। यहाँ 39 का 40 भी नहीं होता है। नहीं करना है तो अभी से छोड़ दो ना। Seriously, I'm talking. I mean, I'm discussing with an institution in UK. Next, tomorrow my wife will be going. That discussion will be taken ahead. Some courses will be brought here, with which you will be getting the certification of graduation, post-graduation of university in UK, that too in London. Queen's University is one of the topmost 200 universities in the world. You'll be getting that, and job assurance will be given. समझा? It will be finance plus software. नहीं, सीए नहीं करना है ना, छोड़ दो। बट वो करेंगे तो वहां भी ये क्वालिटीज लगने वाली है, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, हार्डवर्क, मेहनत, सब कुछ। कभी तो भी ये खुद को क्वेश्चन पूछो कि am I on the right track? Doing CA is not everything in the life, but having these qualities is everything in the life. और ये क्वालिटीज है तो बाकी कुछ करने से ये सीए आसान है। आपको एक बात बताऊं क्या, सीए को नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंस किसको मिलता है? IIM MBA किया, IIM में से किसी, वो भी अगर अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट में से, पर उसके लिए देना पड़ता है कैट, और वो क्लियर होना सीए से ज्यादा डिफिकल्ट है। इफ यू क्लियर MPSC, UPSC, then you can have good prospects. गवर्नमेंट जॉब मिले होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, अथॉरिटी होगी तो पैसा भी मिलता है, तो जिसको लेना है वो लेते हैं, बहुत सारे लेते ही है। बट कीप दैट पार्ट असाइड। लेकिन वो यूपीएससी क्रैक करना ये सीए से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो कोई भी अल्टरनेटिव अगर आप मेरे को बोलेंगे कि ये सीए के अल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे नो, वो सीए से देखो ये इतना डिफिकल्ट है। ये करना आसान क्यों है? क्योंकि यहाँ एक लिमिटेड सिलेबस है।
IIM के कैट के लिए लिमिटेड सिलेबस होता नहीं है. कंपनी सेक्रेटरी कैन बी इक्विवेलेंट, बट नॉट इक्विवेलेंट इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज. जो सीएस करता है वो सीए भी करता है, लेकिन जो सीए करता है वो सीएस नहीं कर सकता. Versatility is the basic attitude, basic criteria of choosing a course, and that versatility is there in the CA course. बिजनेस में जाएंगे तो भी ये काम आएगा. किसी भी बिजनेस में जाएंगे. वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स alumni, he started a truck business. But he said, because I am a chartered accountant, I can do it more with more confidence. मैं उसका एक बार ये सब स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन ले, आप करते नहीं ना तो थोड़ा मैं डिमोरलाइज हो जाता हूँ. अगर आप ऐसा स्पार्क दिखता ना आप में, तो इन सब स्टूडेंट्स को मैं आपसे, अभी ऑनलाइन की फैसिलिटी है, सो वी वुड एटलीस्ट हैव अ चैट विद देम ऑनलाइन. जो है वो भी तुम करते नहीं तो बाकी की चीजें बताने में क्या मजा है. ये ऐसा मेरे भी मन में कहीं तो भी आता है. पर वहां उस बिजनेस में भी ही इज सुपीरियर, बेटर देन एनीबडी एल्स इन द सेम बिजनेस. व्हाई? बिकॉज in that business also you will have to deal with, because these are going to be the days of this entire platform economy. जैसे ये अभी का Amazon है, ये है. ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो है स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स पार्ट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट. तो लॉजिस्टिक्स में बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, पर वहां अगर तुम क्वालिफाइड हो तो तुम्हारे क्लाइंट से डील करते हुए तुम्हें कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा ना, तुम्हारे चेहरे पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. यू विल डिक्टेट द क्लाइंट, because you will then be coming across the pharmaceutical companies and several other companies, but mainly pharmaceutical, which require the very deep refrigeration, storage, cold storage and all that. तो उनसे बात करते समय ऐसे बायोटा सारखं गेला पण है करत, तर ते यू विल नॉट क्रिएट एन इम्प्रेशन ना. But if you are a qualified chartered accountant, and then if you deal with those people, then that deal will be more effectively brought to the finalization. तो ऐसे बहुत सारे नए ओपनिंग्स हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट कौन किसको होता है? जो पैदा से गधे होते. समझा क्या? कुछ करना ही नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे. So many opportunities are getting created because of this background of what globalization and so much the foreign direct investment, FDI जिसको कहा जाता है. So many opportunities are getting widened. और ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, लॉजिस्टिक्स, इसे तो सबसे ज़्यादा स्कोप है. तो यहाँ आपको बहुत अच्छा करियर आप कर सकते हो. बड़ी बड़ी कंपनी IIMs में वगैरह वो अभी MBA लॉजिस्टिक्स का कोर्स डेवलप हुआ है. मैंने जैसे बताया आपको कि ये सबसे सीए आसान है. वो MBA करना है तो सीए के बाद करो. दैट विल बी द पोस्ट क्वालिफिकेशन, दैट विल बी द सुपर स्पेशलाइजेशन. कुछ करना नहीं और सिर्फ ड्रीम्स ख्वाब देखना कि मेरे को बहुत रिच बनना है, दुनिया के पहले 10 रिचेस्ट पीपल में आना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को एलोन मस्क बनना है, मेरे को ये, दिस इज फ्यूटाइल. ये नहीं हो सकता. Anyway, why I talk about this frequently, because I consider you all as my own children. आपका भविष्य बने ये मुझे लगता है, सिंसियरली फील लाइक दैट. तो अभी इतना भी करके आप फेल ही हो गए तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ रास्ता में दिखाऊंगा कि ये कर सकते हो, कुछ ना कुछ जॉब मिलेगा. बट उस सबसे ये आसान है. समझा? एनीवे, तो फिर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 numbers is 50. An observation 3 was wrongly taken and it deleted from the data. What is the rectified geometric mean? How many values are there? 3. लेकिन उसमें से एक वैल्यू 3 पता है तुमको, तो बाकी जो वैल्यूज है वो ए बी कहेंगे. तो 3 into A into B, 3 into A into B product, and the cube root of that is the geometric mean.
एंड दैट इज गिवन टू बी व्हाट 50। अभी स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो स्क्वायर करो, और क्यूब रूट को रिमूव करना है तो फिर क्यूब करो। Therefore 3 into a into b will be equal to 50 raised to 3, but therefore 3ab 50 क्यूब तो तुम निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे? टाइम वैल्यू का डिस्कशन अभी हमने पूरा किया मॉड्यूल का, तो वहाँ बहुत सारे टाइम ऐसा किया है। 50 इंटू 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 इक्वल टू टिल काउंटर बिकम्स 4, तो वो मिलेगा। एंड देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू दैट 50 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 3 3 कट 50, नहीं ना, 50 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अभी दो नंबर्स मिल गए, अभी एक गया बाहर, 3 गया बाहर, कोई अंदर आया क्या? नहीं आया, तो दो ही नंबर बचे। एंड therefore the geometric mean of the two numbers will now be, the rectified geometric mean will be just a square root of a into b। दो ही नंबर है ना, तो ये ए बी का प्रोडक्ट तुम्हें मिला है तो उसका रूट लेंगे तो फिर रेक्टिफाइड वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन मिलेगी। क्वेश्चन क्या होता है? यही क्वेश्चन है, यही प्रॉब्लम है, ऐसे ही प्रॉब्लम पेपर में होते हैं। करो तो माझ्याकडे बघून काय होते। हो गया क्या? तो फिर अभी 13वां करेंगे क्या? ट्राई करेंगे क्या? किसी लड़की को प्रपोज करना है तो क्या बोलने का? 13 वाह, 13 वाह। चिढ़ गई तो बोलने का मैंने 13वां क्वेश्चन के बारे में बोला, और नहीं चिड़ी तो मग काय काम बन गया। करो बाळांनो, 13 क्वेश्चन यू ट्राई ऑन योर ओन। वैसे और क्या तरीका है प्रपोज करने का? ए मेरी का, क्या बोलने का? ए मेरी का। चिढ़ गई तो क्या बोलने का? मैं अमेरिका बोल रहा था। अमेरिका भी ए मेरी का भी होते। नहीं चिढ़ गए तो काम बन गया। नहीं तो बोलने का 1/cos c, यू आर 1/cos c। 1/cos सेक होता है ना, तो 1/cos c मतलब सेक्सी। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है ना। दिस इज मैथमेटिकल फ्लर्ट। करो। हाँ? असं कोणी? मुलगी तिला नाहीच कळणार ना, समजून सांगायला लागेल। होते तू मारवाडी म्हणून। Space, space. हो गया क्या बाळांनो? तो फिर harmonic mean of 10 number, basically what is the formula for the harmonic mean? That is n upon summation 1 upon x. अभी if that is true, then 23 is equal to 10 numbers that divided by summation 1 upon x. बट ये 1 upon x रॉन्ग होगा ना, क्योंकि पहले हम रॉन्ग से करते हैं। पहला जो होता है वो रॉन्ग होता है, फिर बदल के में जरा अच्छा मिलता है।
समझा? इसका मतलब हो गया समेशन 1/x wrong will be equal to 10/23 and therefore summation 1/x correct is summation 1/x wrong minus 1/x wrong plus 1/x correct. लेकिन यहां कोई रॉन्ग दिया नहीं है, रॉन्ग कुछ दिया नहीं है. Only one more additional observation has been taken, that is 4. तो summation 1/x wrong is 10/23 जो भी आता है, माइनस यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन प्लस फिर 1/4, ये होगा समेशन x करेक्ट. तो फिर नया हार्मोनिक मीन करेक्टेड विल बी न्यू n ओवर समेशन 1/x करेक्ट. अभी ये n के साथ क्या होगा, क्या होगा इनका पड़ेगा काय n आणि therefore करो this n will become 11 divided by करो 10/23 किती आया, कितना आया, और फिर नया हार्मोनिक मीन निकालो. इस तरीके से सब काम होने वाला है. करो. काय काय हे सगळे एक्सपिरियन्स आहे, कोणालाही विचार, तिला विचार मागायचे असे ते असे आणून देते गिफ्ट दिलं पेपर मागायला काही गरज काही, दॅट इज नॉट अलाउड. यू हॅव टू टेक द पेपर. सेंटर हो गया क्या बाळांनो? कॉपी कधीच करता येईल सुपर राहिलं हो गया क्या बाळांनो? झालं का? ये तुमको समझा क्या? अभी लेट अस मूव देयरफॉर ऑन टू द नेक्स्ट नोट. कोई भी कुछ भी बोलेगा नहीं, कोई भी कुछ भी बोलेगी भी नहीं. I want your attention now. Few more notes we are going to see. वैसे यहाँ सब कुछ है, लेकिन आपको लिखना है. उस पे मत डिपेंड रहो, जो प्रिंट किया है लिखो. Want your attention. जो कैलकुलेशन हमने पहले किया था, स्टॉप टॉकिंग. कैलकुलेशन जो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का हमने कपल ऑफ प्रॉब्लम्स में अर्लियर किया था, वहां से चेक करो. तो चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अरिथमेटिक मीन is always greater than or equal to geometric mean is greater than or equal to harmonic mean. हाँ, कोई लिखेगा नहीं, जरा मेरे तरफ देखो. However, if I ask you 5, 5, 5,
what is the arithmetic mean? That arithmetic mean is 5 plus 5 plus 5, and that over 3 observations are there. Therefore, 15 upon 3, which is 5. The arithmetic mean is 5. What is the geometric mean? It is the cube root of. It will be 5 into 5 into 5. So cube root of 5 cube. बट क्यूब रूट का मतलब होता है रेज टू 1/3. ये कोई आपको पूछेगा नहीं, लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए. तो ये 3 कट होगा, ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बिकॉज x रेज टू m दैट रेज टू n इज x रेज टू m इंटू n. तो फिर ये भी 5 हो गया. अतः व्हाट विल बी हार्मोनिक मीन? इट विल बी 3 अपॉन 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5. दैट मीन्स 3 अपॉन 3/5. अभी अपॉन 3/5 मीन्स इंटू 5/3 होता है कि नहीं? Therefore, this is 3 into 5 upon 3, 3 कट, ये भी तो 5 होगा. तो ये तीनों इक्वल हो गए, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. लेकिन ये इक्वल क्यों हो गए? क्योंकि ऑब्जर्वेशंस वर इक्वल. सो in case if observations are equal, in case if the observations are equal, then particularly arithmetic mean is equal to geometric mean is equal to harmonic mean. But if these observations are distinct, different, then what will happen? Arithmetic mean is strictly greater than geometric mean is strictly greater than harmonic mean. हाँ, ये थ्योरी रिजल्ट है. अभी इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं मॉड्यूल? ऑफ कोर्स वी आर आफ्टर टाइम वैल्यू वी आर गोइंग टू टेक दिस चैप्टर. तो वहां हम क्या करेंगे? वहां क्या क्वेश्चन दिया है? आई टेल यू वन क्वेश्चन गिवन इन द मॉड्यूल, या मॉड्यूल में होगा, स्कैनर कहीं तो भी है, बट वो ऐसा है दैट अरिथमेटिक मीन इज 7, ज्योमेट्रिक मीन इज 7, हार्मोनिक मीन इज व्हाट? अभी होता क्या है, देखो मेरे तरफ, 2 इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा. समझा ना? इसमें से अगर 2 इक्वल है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसका मतलब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों इक्वल होने चाहिए. तो दिस विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू 7. समझा? हाँ, एक रिजल्ट हमने लिखा है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन. ये इन जनरल ट्रू नहीं है, ये सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन के लिए है. तो दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन एवरी टाइम, बट this result is always useful, that if 2 of them are equal then 3 must be equal. Sometimes there is a question, देखो एक ही छोटा सा थ्योरी एमसीक्यू है, लेकिन उस पे कितने सारे क्वेश्चंस को डिजाइन कर सकते हैं. that if arithmetic mean is equal to 7, geometric mean is equal to 5, harmonic mean is equal to 6. हाँ, अभी क्या होगा चॉइस? करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट, मे बी करेक्ट, ऑलवेज रॉन्ग, none of this. So this is always wrong. Why always wrong? Because harmonic mean is the smallest. Arithmetic mean is strictly greater than geometric mean is strictly greater than harmonic mean. तो ये 5 less than 6 ये wrong है. So this is always wrong. जो छोटे छोटे रिजल्ट्स होते हैं वो आपके माइंड में ऐसे पेनिट्रेट करना चाहिए होते, और फिर उसका यूज करना चाहिए. समझा ना? छोटा सा रिजल्ट है, लेकिन उसके ऊपर कितने क्वेश्चंस है देखो. समझा? तो यहां लिखो, एंड वी विल रिपीट दैट फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस, फॉर ओनली 2 ऑब्जर्वेशंस, दैट ज्योमेट्रिक मीन इज रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन. ये वापस लिखो, एक बार लिखा है लेकिन परत लिखो. रिपीटिंग द कंसेप्ट इज बेटर देन रिपीटिंग द अटेम्प्ट. तो एक ऑलरेडी हो चुका है, दूसरे की तैयारी है, फिर तीसरे की तैयारी नहीं करना है, क्योंकि 1 2 फुल स्टॉप. हो गया? ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, ब्यूटीफुल थ्योरी, extremely good theory, easy theory,
and theory is like a fairy. हो गया क्या? लिखा? Now I want your attention. Remember, रब करूँ कैसे? रब करूँ क्या? Now remember, stay focused. Generally, what happens? For example, if you consider the income of people in any city or any country, middle class people are in majority. Do you agree? तो एवरेज इनकम के लिए नंबर सबसे ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ पीपल. फिर जैसे इनकम को बढ़ाएंगे वैसे वो नंबर ऑफ पीपल विल रिड्यूस. एंड जैसे इनकम एवरेज से कम करेंगे तो भी नंबर ऑफ पीपल विल रिड्यूस, बिकॉज पीपल ट्राई टू अर्न मनी सो दे डोंट रिमेन फॉर लॉन्गर टाइम इन द पुअर पीपल्स जोन. तो क्या होता है नॉर्मली, इफ यू कंसिडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाइट, एवरेज हाइट पकड़ेंगे, आज क्लास के सब स्टूडेंट्स के हाइट मेजर करेंगे तो एवरेज हाइट वाले स्टूडेंट सबसे ज्यादा होंगे. अगर वह एवरेज हाइट से टॉल स्टूडेंट्स को कंसीडर करेंगे तो नंबर विल गो ऑन रिड्यूसिंग. और वैसे वहां इस साइड को भी नंबर रिड्यूस होगा, एवरेज से कम हाइट वाले भी तो कम होते हैं. समझा ना? तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज दैट वी गेट अ सिमेट्रिक लुकिंग कर्व. This curve is what? Symmetric. Why is it called symmetric? Because यहाँ अगर तुम इस एवरेज अरिथमेटिक मीन को कंसिडर करेंगे और यहाँ अगर फोल्ड करेंगे इस कर्व को, तो दिस पार्ट विल मैच विद दिस पार्ट. दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक कर्व. जरा समझने की कोशिश करो. बट कभी कभी क्या होता है कि शुरू में वो नंबर बढ़ता है, शार्पली बढ़ता है, और फिर वो नंबर कम 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 होता है. ये इस तरीके की सिचुएशन कब आ सकती है? सो सपोज यू कंसिडर द पीपल इन दिस क्लास गेटिंग होपलेस मार्क्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो यहां क्या होता है कि कम मार्क्स के लिए ये नंबर सबसे ज्यादा है, हाइट सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे वो मार्क्स ज्यादा कंसीडर करेंगे वैसे वो नंबर ऑफ पीपल इज रिड्यूसिंग. समझा ना? और बहुत ज्यादा मार्क्स वाले तो क्या है, जीरो थे. समझा? दिस इज पॉजिटिवली शिफ्टेड कर्व, दैट इज पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व. हाँ, स्क्यू का मतलब होता है शिफ्ट. तो यहां शिफ्ट कौन से साइड को ज्यादा है? एरिया ज्यादा कौन से साइड को है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर अबाउ द दैट वैल्यू, मीन वैल्यू. समझा? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शुरू में कम होता है और देन इट गोज टू द पीक एंड कम्स डाउन शार्पली. ये इनकम के बारे में या किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में ऐसा होगा कि कम प्रोडक्शन वाले दिन ज्यादा होता है. ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यू विल एग्री विथ मी. व्हाई डू द पीपल कमिट द सुसाइड, अनफॉर्चुनेट सुसाइड? बिकॉज कम प्रोडक्शन वाले दिन ज्यादा होते हैं. वो फिर कभी तो भी वो प्रोडक्शन पीक हो जाता है, देन अगेन इट शार्पली फॉल्स डाउन. So that situation is the situation out here which is called the negatively skewed curve, क्योंकि लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड होती है ना. तो दिस कर्व इज द नेगेटिवली स्क्यूड कर्व. दिस इज द नेगेटिवली स्क्यूड कर्व. शिफ्ट इज ऑन नेगेटिव साइड. अभी इफ दैट कर्व इज द सिमेट्रिक कर्व, अभी ये नहीं कोई पूछेगा कि पॉजिटिव स्क्यूनेस का एग्जांपल दो, नेगेटिव स्क्यूनेस का एग्जांपल दो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा. हाँ, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि यहां अगर द कर्व इज सिमेट्रिक देन मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन. व्हाई? बिकॉज ये सेंट्रल वैल्यू मीन है
वहां ही हाइट मैक्सिमम है तो वो ही मोड हो गया, और वो ही इस करके दो 50-50% के पार्ट बनाता है तो वो मीडियन हो गया। समझा? लेकिन पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व में क्या होता है, हाइट सबसे ज्यादा ये लेफ्ट साइड को है कि नहीं, तो मोड सबसे छोटा है, लेफ्ट मोस्ट मस्ट छोटी वैल्यू है। ऑलवेज मीडियन विल बी इन बिटवीन एंड मीन विल बी द लार्जेस्ट। समझा क्या? वाई मोड इज स्मॉलेस्ट? बिकॉज हाइट स्मॉल वैल्यू के लिए ज्यादा है ना। फिर तुम तो क्या करो, कम मार्क्स के लिए हाइट ज्यादा है कि नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है कि नहीं, तो वो मोड जो है वो छोटा है, मीडियन हमेशा बीच में रहता है, और फिर मीन विल बी द लार्जेस्ट। सो फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व दैट मीन is greater than median is greater than what? मोड। तो सबसे छोटा कौन है? मोड। सबसे ज्यादा कौन है? मीडियन, rather what? मीन। इन बिटवीन क्या है? मीडियन। समझा? लेकिन इस साइड क्या होता है, देखो कि हाइट सबसे ज्यादा मोड के लिए है, मोड राइट साइड को है तो लार्जेस्ट है। वो बना कि median is always in between and therefore mean will be the smallest. So here mode is the largest, median is in between, mean is the smallest. छोटा सा रिजल्ट है, देखेंगे तो छोटा सा रिजल्ट है, लेकिन अगर प्रिपेयर करेंगे तो फिर वो आसान होगा, नहीं प्रिपेयर करेंगे तो कैसे आएगा ना। सारसबाग इज इन वी सिटी, ये अगर आपको पुणे सिटी पता है तो आपके लिए एकदम चाइल्डिश क्वेश्चन हो गया। ये थर्ड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट बच्चा भी बोलेगा कि ये पुणे में है। लेकिन इफ यू आस्क दिस टू द अफ्रीकन स्टूडेंट इन अफ्रीका, देन फॉर हिम दिस इज इम्पॉसिबल क्वेश्चन। समझा ना? क्योंकि अगर वो जाता है सारसबाग में तो फिर वही एक तो वो दिखेगा ही नहीं, है की नाही? रात्री जाईल तर कसं दिसेल तो? समझा? अभी देखो मेरे तरफ, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, लेकिन अगर द शिफ्ट इज मॉडरेट, स्क्यूनेस इज छोटा, थोड़ा शिफ्टेड है, बट दैट इज नॉट मच। So for moderately shifted curve, moderately skewed curve, for the moderately skewed curve, the relation is mean minus mode is equal to 3 times mean minus median. 3 times mean minus median. Say yes. वो भी रिजल्ट इधर है, प्रिंट किया है, सब कुछ प्रिंट किया है, वो एक बार पढ़ेंगे एग्जाम के लिए तो काफी होगा। आज लिखो, एग्जाम में से प्रिंटेड नोट जो है उसे करो। वैसे भी ये होने के बाद हम रात के लेक्चर में क्या करेंगे, इसका चैप्टर के रिवीजन करेंगे। तो आई विल नॉट राइट एनीथिंग, यू विल ऑल्सो नॉट राइट एनीथिंग, आई विल नॉट कीप एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज, एंड आई विल जस्ट गो ऑन सेइंग द थ्योरी पॉइंट्स, यू विल रिकॉर्ड इट एंड सुनते रहो बार बार, तो वो सफिशिएंट हो गया। समझा? हो गया क्या? तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? हाउ कैन द क्वेश्चंस बी आस्क्ड ऑन दिस? इफ आई टेल यू दैट फॉर अ distribution, for a data, mean is 20, median is 15, mode is what? कुछ तो देंगे, कुछ तो पूछेंगे, करो। दिया है हमने आपको वक्त।
महाराष्ट्रामध्ये नव्हते रात्री भूत येतं रात्री खिडकीकडे शांतता आहे हडपसरमध्ये पुण्यापेक्षा. शांतते हो गया क्या? आया क्या आंसर? क्या आया? 5. तो मोड कम्स टू बी 5. अभी मेरे को बोलो, इज दिस अ सिमेट्रिक कर्व, पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व और नेगेटिवली स्क्यूड कर्व? मीन सबसे बड़ा है तो इट विल बी द पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व. समझा ना? इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है. तो फिर यहां ये आपने ये नोट को लिखा है क्या? ओके, नाउ आई वांट concentration. Look, what I will do is I will draw the less than type of ogive. We know it is the S-shaped curve. ये हमने देखा है. I draw the less than ogive could have this shape like this. Now always remember, x coordinate is called abscissa. Y coordinate is called ordinate. Very good. Now if I consider the ordinate of capital N by 2, ये ordinate है. अभी कर्व के ऊपर से यहां तुम अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, ओके, और फिर यहां से एक्स एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर डालेंगे, भारी दिसते ना, देन दिस विल गिव यू मीडियन. दिस विल गिव यू द मीडियन. समझा क्या? सो क्या एमसीक्यू है इधर? द एमसीक्यू आउट हियर इज, द एमसीक्यू हियर इज abscissa of point on ogive having ordinate n by 2 is the median. देखो सेंटेंस. ये सेंटेंसेस आपको एग्जाम में नहीं लिखना है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है ना. हाँ, वो क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट कैपिटल n by 2 इज एसोसिएटेड विथ n by 2 मतलब मीडियन. अभी समझो, मैंने ऑर्डिनेट कैपिटल n by 4 कंसिडर किया और फिर यहां से यहां परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, तो व्हाट यू गेट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल क्यूएन. समझा? तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑन ओजाइव having the ordinate 1n by 4 is the first quartile. Now it can be generalized, na? It can now be generalized. Abscissa of point on ogive having 3n by 4 is the third quartile. Abscissa of point, everything same, say 3n by 10 will be the third decile. समझा? Similarly, if I write
kn by 10, then what is it? That is the kth decile. It is the kth decile. Kth decile ना, first, second, third, fourth. Kth decile जो भी है. Similarly, if I consider all these and I say kn by 100, then it will be kth percentile. Kth percentile, that is pk. पीके याद आता है क्या? डांसिंग कार. क्या है? हाँ, नहीं, वो क्या हो गया, मूवी देखने के खत्म होने के बाद मेरा बेटा वहाँ वहाँ उस समय वो छोटा था, तो उसने मेरे को बोला की बाबा आपण पण अशी डान्सिंग कार घेऊया ना. मी त्याला म्हटलं तू झोप, हीच कार डान्सिंग होईल. ट्रॉमा झाला असेल त्याला. आणि किमान सोच. अपना ट्रॉमा झाला. हो गया क्या? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहां एक एमसी की जो पहले भी लिखा है, लेकिन वापस हम लिखते हैं कि ओजाइव गिव्स मीडियन. पहले भी लिखा है, वापस लिखते हैं. ओजाई गिव्स द मीडियन. हिस्टोग्राम जहां हाइट मैक्सिमम होती है ना, वो बार बार निकलते हैं. बार बार निकलते हैं म्हणजे बार निकलते, बार 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 निकलते नहीं. तो हिस्टोग्राम गिव्स यू मीडियन मोड, बट अरिथमेटिक मीन कैनॉट बी फाउंड ग्राफिकली. ये लिखा है पहले भी, कैनॉट बी फाउंड ग्राफिकली नहीं, ग्राफिकली. हो गया क्या? अभी जरा मेरे तरफ देखो. few extremely vital points. Look at me. I had a very small question, but they are very important. If I tell you that the observations are 3, 4, 5, these are the x values. Tell me what is the x bar? x bar क्या होगा? 3 plus 4 plus 5 over 3, which will be 4. Now I make a column x minus x bar. x values है 3, 4, 5. तो x minus x bar 3 minus 4 minus 1, 4 minus 4 0, 5 minus 4 1. Or if I take the total here, summation x minus x bar is always 0. It's always 0. तो क्या है इधर? Sum of deviations from arithmetic mean x bar is always 0. पास एमसीक्यू है इस एक सेंटेंस पे मॉड्यूल में. 5 MCQs are out there. Sum of deviations from mean is always equal to 0. हायर रिवीजन बैच, बट वी आर स्टडीइंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है तुमको तो क्या है.
हो गया क्या? लेकिन लेकिन सेकंड नोट, लेकिन देखो मेरे तरफ, लेकिन if I consider the sum of absolute deviation, absolute means modulus, sum of absolute deviations मतलब modulus, summation modulus x minus x bar, summation modulus x minus mod, summation modulus x minus median, इन तीनों में sum of absolute deviations from median is the smallest, is the least, is the smallest. मान लो मीन मोड मीडियन, इससे अगर एब्सोल्यूट डेविएशन लिया, एब्सोल्यूट का मतलब नेगेटिव को इग्नोर करो, तो फिर इसमें समेशन मॉड्यूलस एक्स माइनस मीडियन इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट, देन इट इज ऑलवेज लीस्ट. कितना इजी है, कितना आसान है. और इसके 20 में से 20 + 10 30 और लॉजिकल रीजनिंग पास. तो जो करना है परफेक्ट करो. कि स्टिल पीपल आर आस्किंग मी व्हाट टू डू इफ आई वांट टू पास. मेरा सिंपल फॉर्मूला है हर सब्जेक्ट के लिए. ऐसे चैप्टर सिलेक्ट करो कि जो आपका टोटल लेता है 70 तक, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते. समझा क्या? तो 10 + 20 30, 30 + 20 लॉजिकल रीजनिंग हो गया 50. फिर छोटे छोटे चैप्टर्स को इकट्ठा करो. इंडेक्स नंबर है, सेट रिलेशन फंक्शन है, ये टोटल आपको 20 तक लेके जाता है, तो फिर यू पास. फेल होना नामुमकिन है, लेकिन आपने वो करके दिखाया जो वैसे नामुमकिन है. यू हैव डन समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील कर दिया. ट्रांसफॉर्म द इम्पॉसिबिलिटीज इनटू पॉसिबिलिटीज. समझा? हो गया क्या? ठीक है. तो फिर अभी मेरे तरफ देखो, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है. अगर मैंने के लिखा, तो एरिथमेटिक मीन इसका के ही होता है, ज्योमेट्रिक मीन इसका के ही होता है, हार्मोनिक मीन इसका के ही होता है. समझा ना? मीडियन भी के ही होता है, मीडियन इज ऑल्सो के. लेकिन मोड डज नॉट एग्जिस्ट. समझा? If all observations have equal frequencies, देखो यहां, if all observations have equal frequencies, same frequencies, mode does not exist. Mode does not exist. पढ़ने दो, समझा क्या? What does not exist? Mode does not exist. For example, if I write x, 5, 6, 7, frequencies 10, 10, 10, I ask you what is the mode? So frequencies being equal, therefore mode does not exist. Therefore mode does not exist. देखो, very important. If all observations are the equal frequencies, frequency can be 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Frequencies are equal, mode does not exist. Yes, समझा? Now if I ask you, what is the standard deviation of k? What is the range of k? What is the quartile deviation of k? Anything. That will be 0. Why? Because there is no variation. There is no variation. वेरिएशन ही नहीं है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा, क्वार्टाइल डेविएशन 0 होगा, मीन डेविएशन 0 होगा. एनी मेजर ऑफ डिस्पर्शन विल बी व्हाट? 0.
Is that clear? Beautiful questions, beautiful discussion. हो गया क्या? अभी जरा मेरे तरफ देखो. Stay back. If I write that the observations are 2, 3, 4, frequencies being 7, 10, 3. अभी इसका मतलब है 2 comes 7 times. 2 comes COMES 7 times. 3 comes 10 times. 4 occurs 3 times. समझा? तो जो ज्यादा बार ऑकर होता है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना. आपको है 10 बॉयफ्रेंड, लेकिन जो ज्यादा बार मिलता है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. समझा ना? जो ज्यादा मिलता है रोज वो इंपॉर्टेंट होता है. अभी इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट डिसाइड्स इंपॉर्टेंस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन. बट इंपॉर्टेंस का मतलब होता है वेट. जो इंडेक्स नंबर में भी हम कहते हैं दैट मोर यू परचेस, मोर इज द क्वांटिटी कंज्यूम, मोर इज द इंपॉर्टेंस टू यू. अगर एरोप्लेन का रेट बढ़ गया 300 करोड़ से 30,000 करोड़ हो गया, 10 टाइम्स बढ़ गया, तो तुमको फर्क नहीं पड़ता. हेलीकॉप्टर लेना ही नहीं है अपने को, बराबर ना. रात को विदाउट हेलीकॉप्टर ही हम हवा में जाते. अभी पर का अभी अगर सॉल्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय मियर 1 rupee, then you are disturbed because salt you purchase frequently. अगर टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर की प्राइस बढ़ती है तो तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता. फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वो टीवी आप जिंदगी में 2 बार 3 बार ही परचेस करेंगे. तो प्राइस बढ़ गई तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ये जो वेजिटेबल्स है, ग्रोसरी है, वो उसकी प्राइस बढ़ गई तो योर कंसर्न. पेट्रोल है. समझा? तो फ्रीक्वेंसी मतलब वेट मतलब डब्ल्यू. अभी हम मीन कैसे निकालेंगे बोलो इस डेटा के लिए? देखो मत, पहले बोलो. हाउ वुड यू, विच फॉर्मूला वुड यू यूज? फ्रीक्वेंसी दिया है ना, तो विच फॉर्मूला वुड यू यूज? यू विल मेक अ कॉलम fx, and then this is 14, this is 30, this is 12. You will find summation fx, and this is summation f, what we call capital N. And then you know that arithmetic mean is equal to summation fx upon summation f. This is called weighted mean. This is called weighted mean. इंडेक्स नंबर में CLI निकलते, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. दैट इज समेशन IW अपॉन समेशन W. वो सेम है. I मतलब इंडेक्स, उस ग्रुप का इंडेक्स. W मतलब वो कितने बार आप परचेस करते हो. तो W इज द वेट. तो समेशन IW मीन समेशन FX अपॉन समेशन F मीन समेशन W. तो CLI इज अ वेटेड एवरेज. अनदर MCQ. वहां लिखेंगे इंडेक्स नंबर में, अभी मत लिखो, नहीं तो बोलेंगे इंडेक्स नंबर क्या होता है. अभी देखो मेरी तरफ. So when do we use weighted mean? We use weighted mean when frequencies are different. Frequencies are different. When the observations are different frequencies. And that weighted mean is summation fx upon summation f or summation wx over summation w. W म्हणायचं काय, W नहीं.
हो गया क्या? Okay, now look at me. If I say that the observations are 2, 3, 4 and their frequencies are 5, 5, 5, then tell me what will be the fx column. This is 10, this is 15, this is 20. What is summation fx? 45. And what is summation f? 15. So what will be x bar? It is summation fx upon summation f, 45 upon 15, which is 3. अभी मैं क्या करूंगा कि ये फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करो, सिर्फ x की वैल्यूज रॉ डेटा जैसे 2, 3, 4 लिखा, तो फिर उसका मीन कितना आता है? 2 + 3 + 4 over 3, that will also be 3. So weighted mean by this formula and the simple mean, unweighted mean जिसको कहते हैं, by the formula summation x upon n, ये सेम ही होते हैं, समझा? मीडियन भी सेम ही होगा. मतलब if the frequencies are equal we can ignore the frequencies. हाँ, only mode does not exist, but बाकी सब सेम ही आएगा. तो लिखो यहां, if the frequencies are equal, if the frequencies are equal, if the frequencies are equal, we ignore the frequencies. We ignore the frequencies and use unweighted mean. Use the unweighted mean, which is equal to summation x upon n. Ignore the frequency. अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करने का कोई रीजन ही नहीं, क्योंकि सब ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंस लेवल सेम है. अगर 7 बॉयफ्रेंड है और मंडे को एक मिलता है, ट्यूसडे को दूसरा मिलता है, वेडनेसडे को तीसरा मिलता है, तो सबका इंपॉर्टेंस आपके लिए सेम है, रोज एक बार एक मिलता है ना. तो फिर सबसे ज्यादा बार कौन मिलता है? ये मोड डज नॉट एग्जिस्ट. समझा क्या? हो गया क्या? इज दैट क्लियर? अभी यहां मेरे तरफ देखो, ये नोट अभी हमने लिखा है. Ojai gives the median, histogram gives the mode, but mean cannot be found graphically. Now look at me. I want concentration. Tell me, what is the basic formula for geometric mean? Geometric mean is nth root of product. अभी होता है क्या? देखो मेरे तरफ देखो. If one observation is 0, then 0 into anything is 0. The geometric mean is bound to be 0. तो बाकी का कोई वैल्यू ही नहीं है, बाकी को कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. एक ऑब्जर्वेशन 0 है तो geometric mean 0 ही हो जाता है. So we can't find geometric mean if one observation, any one observation is 0. समझा ना? बाकी ऑब्जर्वेशंस को कोई फिर इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा, बराबर ना? और समझो एक ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, अपोजिट साइंस है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है. और अगर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर वो एग्जिस्ट नहीं होता है, समझा ना? तो ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट, कैनॉट बी फाउंड if observations have positive, negative, opposite signs or any one observation is 0. So, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है देखो. If all observations are having same frequency, mode does not exist. Now geometric mean does not exist if any one observation is 0 or फिर they have the opposite signs, positive, negative. ये समझा? समझा करो.
है कि नहीं? इजी, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? you have to have a fun to learn mathematics, okay? उसे स्टडी करके मत करो, वो थोड़ा सा एक ऐसा एंटरटेनिंग गेम खेल रहे इस एंगल से देखो, then you will enjoy it. हो गया? अभी my question to you is, what is the formula for the harmonic mean? That is n upon summation 1 upon x. इसका मतलब होता है n upon 1 upon x1 plus 1 upon x2 वगैरह. लेकिन if some observation is 0, for example if observations are 2 3 0 और 1 upon x निकालने की कोशिश करेंगे तो 1 upon 2 is 0.5, that's okay. 1 upon 3 is 0.3333, that is okay. But when I say 1 upon 0, it does not exist. क्यों? आपको 5 में से 2 मार्क मिल सकते हैं, पॉसिबल. 2 out of 5 means 2 by 5 is possible. 2 by 5 is possible. आपको 5 में से 0 मार्क्स मिल सकते हैं, that is also possible. तो 0 out of 5 is 0. But 0 में से 5 मार्क्स नहीं मिल सकते ना. टेस्ट ही नहीं हुआ और तुमको 5 मार्क्स मिले, ऐसा नहीं हो सकता. समझा? तो 0 डिनोमिनेटर में है तो इट मेक्स इट व्हाट? मीनिंगलेस. इट डजंट एग्जिस्ट. एंड देयरफॉर 1 upon 0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो पूरा हार्मोनिक मीन ही एग्जिस्ट नहीं होगा. तो हार्मोनिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज 0. लिखो बाळांनो. Harmonic mean does not exist if any one observation is 0, or mode does not exist, of course, if observations are equal. It is easy है, देखो how simple this is. आपके हाथ में अभी भी टाइम है ऑलमोस्ट 2 months का. इसमें आप 4 बार फाउंडेशन पास हो सकते हैं. समझा क्या? इतना टाइम है आपके पास. करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा. सिंपल एज दैट. हो गया? अभी लुक एट मी. समझो, suppose you pass foundation. Suppose you clear intermediate. समझो ना? You do the foundation course. You do the inter. अच्छा असं आहे का? फाउंडेशन कोर्स में इंटर आवट. Suppose you clear final as well, and suppose therefore you become a chartered accountant. Therefore suppose you get a good job. काय? Suppose therefore you get a good salary, आधी salary. Suppose therefore you get a good, and in few moments that good secretary becomes your beautiful wife. This extremely beautiful wife on an extremely romantic evening comes close to you, very close to you, very very close to you. Imagine karo, very 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 close to you, and gives you a carry bag and says, go to the vegetable market, bring the potatoes. Newly married husband, you cannot deny. So you take that carry bag, you go to the vegetable market, you go to the potato seller, वो बटाटे वाली को मिलते हो और तुम उसके पूछते हो कि तेरे बटाटे कैसे दिए. तेरे बटाटे कैसे दिए?
तो बटाटे वाली बोलती है 10 रुपए किलो, पोटैटो सेलर से 10 रुपीज पर केजी, तुम बोलते हैं 8 रुपए से दे दो ना यार, वो बोलते हैं नहीं 10 रुपए से लेना है तो ले बटाटे। फिर तुम्हारे बीच में झगड़ा होता है, तो फिर तुम जाने लगते हैं, फिर वो तुमको रुकती है, काय रुकवाती है, बोलती है रुको। और फिर वो बोलती है कि कुछ करते हैं निगोशिएशन, तो फिर प्राइस कहां सेटल होती है? एरिथमेटिक मीन 8 + 10/2 9 रुपीज से सेटल होता है। तो एरिथमेटिक मीन इज वेरी कॉमनली यूज्ड, एरिथमेटिक मीन इज मोस्ट कॉमनली यूज। बाकी मीन लोगों को पता भी नहीं होता है, एवरेज निकालना है मतलब एरिथमेटिक मीन निकालना, समझा? So arithmetic mean is commonly used. However, so tell me, what is the formula for the arithmetic mean? हाँ, तो that means 2, 3, 4 सबका एवरेज निकालना है, तो ऐड करो डिवाइड बाय 3, so it is based on all observations. अभी मीडियन क्या होता है? वो बीच वाला ऑब्जर्वेशन होता है, तो सिर्फ 3 की तरफ देखेंगे, बीच में कौन है वो देखेंगे, बीच में क्या है उसके तरफ ही देखते, बाकी इधर उधर नहीं देखते, समझा ना? बीच में क्या है, समझा क्या? तो बाकी ऑब्जर्वेशंस ये का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, 4 का अगर 400 भी होता तो भी मीडियन 3 होता, तो मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू, सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। अभी मैंने तुमको बोला कि 2, 3, 400 400, व्हाट इज द मोड? तो 400 डबल आ रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो 400 इज द मोड, तो बाकी ऑब्जर्वेशन 2, 3 की तरफ देखेंगे भी नहीं, एंड देयरफॉर दिस अरिथमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज है, मीडियन एंड मोड दे आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। उसमें से यहां लिखो मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू। अभी समझो मैंने कहा 2, 3, 4, व्हाट इज द मीडियन? 3, और मैंने कहा 2, 3, 4, 5, अभी इवन नंबर है ना, तो जो मिडल ऑब्जर्वेशन है उसका एरिथमेटिक मीन, तो मीडियन विल बी 3 + 4 by 2, that is 3.5. सो इसका मतलब क्या हो गया? इफ n is odd then the central value is median, central value is median, but if n is even then arithmetic mean of two middle values, two central values, आपके लैंग्वेज में लिखो is a median, आपको जैसे चाहिए वैसे लिखो, मैंने ऐसा सिस्टमेटिकली नहीं लिखा है। देखो, if n is even, mean of the two central values is a median, and if n is odd then the middle value is the median। ये समझा? समझा करो। वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, छोटे छोटे सेंटेंसेस है, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स है, अगर छोटे छोटे। हो गया? अभी जरा मेरे तरफ देखो, my question to you is tell me 2, 3, 4, what is the arithmetic mean? 2 + 3 + 4 upon 3, so mean is 3. What is the median? That is also 3 middle value. अभी ये 3 एक ही है,
मीडियन 3 वो भी एक ही है, लेकिन समझो मैंने कहा 2 3 3 4 3, मोड क्या है 3, बिकॉज 3 डबल आता है, लेकिन उसके साथ मैंने 4 भी डबल लिखा, तो 3 भी मोड है 4 भी मोड है, then it becomes bimodal, it has 2 modes. It can have 1 mode, it can have 2 modes, 3 modes, multimodal it can be. समझा? तो मीन इज यूनिक, रिजिडली डिफाइंड, एक ही होता है, तारे हजार होते हैं, चांद एक ही होता है, मोड अनेक होते हैं, मीन एक ही होता है। समझा? सिमिलरली मीडियन इज यूनिक, but mode is not unique. There can be one mode, there can be two modes, there can be many modes, there can be multiple modes. समझा? many modes. समझा ना? तारे हजार होते हैं, चांद एक होता है, लड़कियां हजारों होती है, गर्लफ्रेंड एक होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ, तो फिर मीन इज रिजिड मीन्स यूनिक, मीडियन इज रिजिड मीन्स यूनिक, बट मोड इज नॉट यूनिक, देयर कैन बी मेनी मोड्स। एमसीक्यू समझा? गुड। अभी क्या होता है देखो मेरे तरफ, इफ यू कंसिडर मीन 2 3 4, इसका मीन क्या होगा 3, लेकिन अगर मैंने एक ऑब्जर्वेशन को एक्सट्रीमली लार्ज लिया 4 लाख, देन दैट मीन विल बी इन लैक्स। 2 + 3 + 4 लाख मीन्स 4 लाख, कितनी 4 लाख 5/3 है, लाख में जाएगा। तो एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ये मीन को डिस्टर्ब कर देती है। समझा क्या तुमको? हाँ, बट मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन, central observation is the median, and therefore extreme values मतलब sampling fluctuation, fluctuation मतलब variation, affect the mean, extreme values affect the mean, but not that much affected by, I mean median is not affected by that. and mode क्या होगा, अभी 2 3 और फिर 4 लाख मैंने 2 बार लिखा, तो 4 लाख क्या हो गया, मोड हो गया, तो वो भी अफेक्ट, बाकी 2 3 का कोई वैल्यू ही नहीं है। लार्जेस्ट ऑकरिंग नंबर सपोज इज द वेरी लार्ज नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, मोड विल बी अफेक्टेड। तो मोड इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग वेरिएशंस। मीडियन बीच में होता है ना, तो एक्सट्रीम लार्ज क्या है और एक्सट्रीम स्मॉल क्या है, सब मीडियन पे कोई असर नहीं होता। हो गया? समझा? तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस अगर है, मतलब एक्सट्रीमली लार्ज है या एक्सट्रीमली स्मॉल है, तो मीडियन पे कोई असर होता नहीं, बाकी दोनों पे असर होता है। यस और नो? अफ्रेड टाइम इज अप, विल टेक अप द डिस्कशन टुमारो, एंड मीनवाइल आप भी प्रिपेयर करते रहो, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल के लेक्चर में, फिर रात का